So dear students, today we will have a theorem which is on linearly dependent and linearly independent set of vectors. तो theorem the statement है let B be a vector space over the field F and S1 S2 are subsets of V such that S1 contained in S2. Now if S1 is linearly dependent then so is S2. तो S2 भी linearly dependent होगी. That is superset of a linearly dependent set is linearly dependent. अगर ये dependent है तो इसकी superset भी क्या होगी? linearly dependent. तो ये हम linearly dependent की definition हमें पता है, बस उसी के हिसाब से इसका proof हो जाएगा. So हमारे पास क्या है कि VF is a vector space and S1 S2 are the subsets of this one. So S1 contained in S2 as S1 contained in S2. Let हम ले लेते हैं let S1 is equal to X1, X2, X3, so on, Xn, है ना? And this is a linearly dependent, and S1 is linearly dependent. ये हमारे पास ये S1 linearly dependent तो given ही है, तो उसमें let के आगे आ जाएगा, पर ऐसे चलो let S1 be a linearly dependent set. तो S is like this one. So let us suppose that there is S2 which is contained in this one. So S2 is equal to X1, X2, X3, Xm. अब S2 में ज़्यादा एलिमेंट होंगे, Xm plus 1 and X. So ये हमने दो सेट्स ले ली. इस तरह से कंस्ट्रक्ट की कि S1 is contained in S2. अब आइए आगे देखते हैं. सॉल्यूशंस में अगर हम लिखते हैं कि इफ n इज इक्वल टू, इसमें कितने एलिमेंट है? m एलिमेंट, और इसमें कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट. इफ n इज इक्वल टू m देन S1 इज इक्वल टू S2 एंड S1 इज लीनियरली डिपेंडेंट, देयरफॉर S2 इज लीनियरली डिपेंडेंट. अगर ये दोनों, तब भी तो सेट हो जाती है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो अगर ये दोनों बराबर है तो नथिंग बट S1 S2 दोनों बराबर हैं. S1 इज लीनियरली डिपेंडेंट तो S2 इज लीनियरली डिपेंडेंट. प्रूफ यहाँ से शुरू होता है इफ n इज ग्रेटर देन m. अब n m से बड़ा है, लिखेंगे सिंस S1 is linearly dependent, therefore there exist scalars. स्केलर्स का नाम कुछ भी रख देते हैं, A1, A2, so on, AM, not all zero. डिपेंडेंट के लिए डेफिनेशन है not all zero, such that their linear combination A1 X1 plus A2 X2 plus so on plus AM Xm is equal to 0. लीनियर डिपेंडेंट की डेफिनेशन है देयर आर स्केलर्स नॉट ऑल जीरो सच दैट द लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0. तो यहाँ हमने ले लिया दिस A1 A2 AM आर नॉट ऑल जीरोस. फर्दर हम अगर इसमें ऐड कर दें, देखो यहाँ से हम इसमें ऐड कर सकते हैं A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस ओन प्लस AM XM प्लस, अब इसमें 0 टाइम्स XM प्लस 1 ऐड कर दिया, प्लस 0 टाइम XM प्लस 2 ऐड कर दिया, प्लस ओन प्लस 0 टाइम XN ऐड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो 0 ही रहा. लेकिन हमने क्या लिख दिया? इनफैक्ट हमने ये कर दिया X1 X2 XM XM प्लस 1 XM प्लस 2 एंड XN एंड दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ S2. तो दिस इज नथिंग बट दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ किसके एलिमेंट्स? ऑफ वेक्टर्स of S2. Linear combination of vector of S2 is equal to 0 and linear combination of vector is equal to 0 and all these scalars are not 0. ठीक है ना? इसमें भी स्केलर्स है, ये तो 0 है, लेकिन इनमें से ये सारे के सारे 0 नहीं है क्योंकि पहले लिखा and all scalars are not, सारे के सारे स्केलर्स 0 नहीं है. दिस इम्प्लाइज दैट द सेट S2 इज लीनियरली डिपेंडेंट.
This is the linear combination of the elements of S2 and these scalars are not all zeros, कुछ जीरो हो सकते हैं, not all zeros, therefore the set S2 is linearly dependent. तो सिंपल सा था कि हमने S1 के एलिमेंट्स में कौन डाल दिए, S2 के एलिमेंट्स और उनके साथ क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 0 and this is the linear combination of S2 and scalars are not all 0, so therefore this S2 is linearly dependent set. अब नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं. So students, we have one more theorem which is let V be a vector space over the field F. S1 S2 are again subsets of V such that S1 contained in S2 if S2 is linearly independent. This set S2 is linearly independent, then S1 also linearly independent. That is subset of a linearly independent set is linearly independent. This is a subset of linearly independent set. तो S1 को भी क्या होना पड़ेगा, linearly independent. इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम पिछली थ्योरम का ही यूज कर लेंगे डायरेक्टली. So what is given that S1 and S2 are subsets of a vector space V and S1 is contained in S2. The set S2 is linearly independent and we want to show, and to show क्या शो करना हमने, S1 is linearly independent. This you want to show. If possible, अगर मैं ये लिख लेता हूँ, if possible let, हमने इसको शो करना था linearly independent, मैं लिखता हूँ if possible let S1 is linearly dependent. अगर S1 हमारे पास linearly dependent है और S1 को कौन कंटेन कर रहा है, S2. S1 is linearly dependent and S1 is contained in S2. Therefore by above theorem, वो जो हमारी थ्योरम अभी हमने की, by theorem, previous theorem या above theorem, we have क्या बन जाएगा, S2 is linearly डिपेंडेंट. ठीक है, S1 अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसकी सुपरसेट भी क्या हो जाएगी, लीनियरली डिपेंडेंट. लेकिन S2 हमें क्या मिला हुआ, लीनियरली इंडिपेंडेंट, विच इज ए कंट्राडिक्शन, therefore S1 is linearly independent. तो कुछ नहीं, हमने क्या किया कि S1 contained in S2 और S2 क्या गिवन है, S2 is given that this is linearly independent, this is given and you want to prove that S1 is linearly independent. तो S1 या तो linearly independent हो सकती है या linearly dependent. तो हमने लिख लिया कि let us suppose that S1 is linearly dependent, ये लेके चले. और S1 किसमें कंटेन कर रही है, S2. अगर S1 linearly dependent है तो S2 को भी क्या होना पड़ेगा, linearly dependent. दिस इज द रिजल्ट ऑफ आवर अबव थ्योरम, प्रीवियस थ्योरम का रिजल्ट है. आप इस रिजल्ट को यहाँ पे लिख सकते हैं. तो बाय दैट थ्योरम S2 इज लीनियरली डिपेंडेंट, लेकिन S2 क्या है, इंडिपेंडेंट. तो दिस इज ए कंट्राडिक्शन. तो दिस इंप्लाइज दैट S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो हमने प्रूव कर दिया कि सुपरसेट, पिछला था सुपरसेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट एंड सबसेट ऑफ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम आती है. तो उससे पहले हम इसको थोड़ा सा और विजुलाइज कर लेते हैं कि इन थ्योरम का कहने का मतलब है क्या. कि अगर हमारे पास एक सेट है, सपोज दिस इज ए सेट, सिंपल सी सेट लेता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1. दिस इज ए सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ वेक्टर स्पेस इन RQ. Okay, and this is a linearly independent. आप फटाफट इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे और इट इक्वल टू 1 नॉन जीरो, तो देयरफॉर इट इज linearly independent सेट. अब मैं इसकी कोई भी सबसेट लेता हूँ. अगर मैं इसकी सबसेट ये ले लेता हूँ 1 0 0 एंड 0 1 0 और आपसे मैं पूछा जाऊँ वेदर इट इज linearly independent और डिपेंडेंट, तो आप डायरेक्ट कर देंगे कि ये इंडिपेंडेंट है तो इसकी सबसेट भी क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी. चाहे ये डाल दूँ मैं इसमें, चाहे इसमें मैं ये डाल दूँ, तो ये भी क्या बन जाएगी, बिकॉज दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो दिस इज आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट. अगर मैं इसको मिटा के सिर्फ एक भी वेक्टर लिख देता हूँ तो वो भी क्या हो जाएगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट.
ठीक है, तो सबसेट ऑफ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब मैं अगर आपके पास ये लिख दूं कि दिस इज 1 1 1 एंड दिस इज 2 2 2 और ये सेट है एंड दिस इज अगेन इन आर क्यूब, आर स्क्वायर में लिखेंगे तो 1 1 2 2 लिख सकते हैं। सिंपल टू सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं। व्हाट अबाउट दिस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये सेट इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट? क्योंकि one vector can be written as, you can write 2 2 2 is equal to a scalar time 1 1 1 लिखा जा सकता है। तो one is scalar multiple of the other, a vector is a scalar multiple of other, तो मीन्स ये डिपेंडेंट बन जाएगी। अगर आपको इससे नहीं लिखना, डेफिनेशन से लिखना, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 1 प्लस और इसको क्या लिख देता हूँ माइनस, दिस इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ जाएगा 0 0 0। अब मैंने लिखा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स 2 2 2 एंड 1 1 1 इज इक्वल टू 0 0 0, बट द स्केलर्स आर नॉट ऑल 0, ये स्केलर्स दोनों के दोनों 0 नहीं है, देयरफॉर दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट, जैसे ये आपने इंडिपेंडेंट प्रूव कर दी थी, तो वो आपने क्या कर दिया, डिपेंडेंट शो कर सकते हैं आप इसको। अब इसमें कोई भी वेक्टर आप अपनी मर्जी से डाल दो, ठीक है, 1 1 1 2 2 2, अगर ये पार्ट बन गया, तीसरा कोई वेक्टर में 1 0 0 ही डाल देता हूँ। अब मैं पूछता हूँ कि वेदर इट इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, क्या आंसर रहेगा आपका? यस, इट इज ए नॉट डिपेंडेंट, क्योंकि दिस इज ए सुपर सेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट, ये इसमें कंटेन हो रही है ना, 1 1 1 और दूसरा कौन था 2 2 2, ये जो सेट है दिस इज कंटेन्ड इन दिस वन सेट। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसको भी लीनियर डिपेंडेंट वैसे ही शो कर देंगे, दिस इज दिस, और इसमें क्या ऐड कर देंगे, प्लस 1 मोर 1 0 0, हमने इसमें ऐड कर दिया। लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं हम, इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं, और ये क्या लिखेंगे हम 0 0 0। तो इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर ऐसा किया तो इसको मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सिंपल, वेक्टर तो हमने ऐड किया लेकिन इसके साथ क्या लगा दिया, स्केलर 0, तो इट मीन्स ये 0 ही है, जैसे हमने पिछली थ्योरम में भी किया। तो देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेक्टर्स 2 2 2 1 1 1 1 0 0 इज इक्वल टू 0, बट द स्केलर्स आर नॉट 0, कुछ 0 हो सकते हैं जैसे ये 0, लेकिन ये नॉन 0 है, ये नॉन 0 है, ऑल द स्केलर्स आर नॉट 0, therefore this set of vectors is linearly dependent। तो superset of a linearly dependent set is linearly dependent, subset of a linearly independent set is linearly independent। तो आप इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं इस थ्योरम को। So now we have a next theorem which is important one। So we have one more theorem which is, the statement is, let S be a linearly independent subset of a vector space V over the field F, and X is a vector in V which is not in S. Then S union singleton X is linearly dependent if and only if X belongs to LS, linear span of S। ठीक है, span of S या फिर linear span of S, अगर ऐसा है, ठीक है। X हमारे पास एक वेक्टर है जो V में तो है बट S में नहीं है। तो अगर इसकी सिचुएशन हम समझते हैं तो इस तरह से है कि S अगर हमारे पास कोई सेट है, V हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है, तो X हमारा यहाँ पे है, ठीक है। और अगर ये S और यूनियन X अगर लीनियरली डिपेंडेंट होता है, S में अगर इसको मैं ऐड कर दूँ तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होता है, इट मीन्स X किसके कॉम्बिनेशन में आएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S, या इट इज इन द स्पैन ऑफ S। और अगर X लीनियर स्पैन में है तो S यूनियन X इज लीनियरली डिपेंडेंट आ जाएगा, ठीक है। जब ये थ्योरम कर लोगे तो उसके बाद आपने ये लिखना है कि इसी थ्योरम को इस तरह से भी चेंज करते हैं कि S यूनियन X इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ X इज नॉट इन लीनियर स्पैन ऑफ S। अगर यहाँ पे नॉट आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो सेम प्रूफ उसका भी लगभग वैसा वैसा ही होगा, तो वो आपने खुद करके देख लेना उसको एक बार। सो दिस इज द प्रूफ में हम लिखते हैं इस थ्योरम के प्रूफ में। तो सबसे पहले हम S कंसीडर कर लेते हैं, लेट S इज इक्वल टू, इसमें कुछ एलिमेंट ले लेते हैं x1 x2 x3, सपोज दिस इट हैज n एलिमेंट्स। ls क्या होगा, इनका कॉम्बिनेशन, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जिसमें आएगा वो ls हो जाएगा। अब हम एक बार लेते हैं कि गिवन इज
दिस इज लेट गिवन हम ले लेते हैं इफ एंड ओनली इफ है एस यूनियन एक्स इज लीनियरली डिपेंडेंट, और आप प्रूव करना चाहते हैं कि x बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ S. Now S union is linearly dependent, therefore definition linear dependent की, therefore there exist scalars मैं A ले लेता हूँ A1 A2 AN कॉमा A स्केलर मैंने इसके लिए ले लिया, ठीक है, ये AN तो इनके लिए ले लिए ना X A नॉट ऑल जीरो, सारे के सारे जीरो नहीं है, सच दैट their linear combination a1 x1 plus a2 x2 plus on plus an xn, और फिर जो मैंने अलग से लिखा था a किसके लिए x के लिए, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ये सेट S यूनियन x, इसमें x हमने ऐड कर दिया, ये लीनियर डिपेंडेंट है, तो मुझे स्केलर्स मिलेंगे जो सारे के सारे जीरो नहीं है, लेकिन इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है 0. अब हम इस चीज को आगे लिखते हैं कि क्या ये a 0 हो सकता है, तो लेट अस सपोज इफ a इज 0, क्योंकि कुछ तो 0 हो ही सकते हैं ना, लेट अस सपोज दैट दिस a इज इक्वल टू 0, तो मैं लिखूंगा इफ a इज इक्वल टू 0, तो अगर a इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस on प्लस an xn इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये टर्म क्या बन गई 0. अब दीज x1 x2 xn हमें गिवन है कि s इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, थ्योरम आप दे सकते हैं, सिंस s which is equal to x1 x2 so on xn is linearly independent, therefore अगर ये कॉम्बिनेशन किसके एलिमेंट है s के एलिमेंट है और इक्वल टू 0 और s लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सारे के सारे स्केलर्स को क्या होना पड़ेगा 0. समझा गई बात यहाँ से. दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ s इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो व्हाट a1 सारे के सारे स्केलर्स को क्या होना पड़ता है 0. तो देखो a हमने पहले 0 ले लिया था, ये सारे के सारे स्केलर्स भी 0 हो गए, मीन्स ये सारे के सारे स्केलर्स क्या हो गए 0. तो अब जो हमारी सेट थी S यूनियन वो क्या बन जाएगी, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ S यूनियन X, और ये सारे AIs क्या बन गए 0, तो ये बन जाएगी, ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएगी, तो विच इज ए कंट्राडिक्शन, देयरफॉर ये मैं इसको ले लूँ 1 implies that from 1 we can imply that क्या आ जाएगा 1 implies that S union X is linearly independent, which is a contradiction, समझाती बात, ये कंट्राडिक्शन होगी क्योंकि हम इसको लेके चले थे लीनियरली डिपेंडेंट, तो इट मींस क्या 0 नहीं, तो 0 क्या 0 नहीं होगा, a 0 नहीं होगा, देयरफॉर a इज नॉट इक्वल टू, देयरफॉर एक कंट्राडिक्शन अप्लाई करेगी कि a 0 नहीं है. अगर a 0 नहीं है तो फिर से हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं, फेज a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस on प्लस an xn plus a into x is equal to 0. Now a is non-zero, so ax can be written as minus a1 x1 minus a2 x2 plus on minus an xn, कुछ नहीं हम इधर लेंगे, ठीक है, and this means x can be written as minus a1 upon a into x1 plus minus a2 upon a into x2 plus on plus minus an upon a into xn. And what is this? These are the scalars. a is non-zero तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. These are the scalars, और scalars को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है x1 x2 xn, और वो किसके एलिमेंट्स हैं s के एलिमेंट हैं. So what is this? This is nothing but क्या बन गया, x is equal to linear combination of elements of S के elements का linear combination हो गया. So this implies that X belongs to span of S.
तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो x को किस में होना पड़ेगा, स्पैन ऑफ s में। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब लिखिए कन्वर्सली, कन्वर्सली में ये गिवन आ जाएगा, कन्वर्सली में x बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ s, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज गिवन। और सोचो क्या प्रूव करना है, वी वांट टू प्रूव, क्या प्रूव करना चाहते हैं, वी वांट टू प्रूव s यूनियन सिंगलटन x इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक, तो s यूनियन लीनियरली डिपेंडेंट कब होगी, जब कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा उसके एलिमेंट में और वो सारे के सारे स्केलर जीरो नहीं है। तो x belongs to LS of s, it means x can be written as linear combination of the elements of s। तो एलिमेंट तो हमें पता ही है, तो मैं अब नया स्केलर ले लेता हूँ b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस on प्लस bn xn, where bi's are the scalars, and this can be written as b1 x1 plus b2 x2 plus on plus bn xn। इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो प्लस माइनस 1 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 0। अब ये किसके एलिमेंट्स आ गए, x1 x2 xn और x, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ s यूनियन x, एंड दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ s यूनियन x। क्या सारे के सारे स्केलर्स जीरो हैं, देखो हमें v1 v2 bn के बारे में तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि -1 इज नॉट इक्वल टू 0। This is the linear combination of the elements of S union X, है ना, and all the scalars are not zero. Therefore, by the definition of linearly dependent, S union X is linearly dependent. तो लिखेंगे this is linear combination of elements of S union X, and linear combination is equal to 0, and all the scalars are not 0. For example, the coefficient of x is equal to -1, which is not equal to 0. एक तो हमें दिख ही रहा है, coefficient of x which is -1, this is not equal to 0, तो सारे के सारे स्केलर्स 0 नहीं है। This implies that S union x is linearly dependent. So this is nothing but definition of linearly dependent. लीनियर डिपेंडेंट की डेफिनेशन होती है कि सारे के सारे स्केलर्स जीरो नहीं होते, और इंडिपेंडेंट में सारे के सारे स्केलर्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। सो दिस इज, अब मैंने आपको ये कहा था कि इसी थ्योरम को आपने अलग से ढंग से करना है, डज नॉट बिलोंग्स टू लीनियर इंडिपेंडेंट की जगह क्या, लीनियर डिपेंडेंट की जगह क्या करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। जो आपने सोल्यूशंस भेजे थे, कम बच्चों ने भेजे थे, 4 बच्चों ने भेजे थे सॉल्यूशंस, लेकिन सॉल्यूशंस ठीक लिखे थे, लेकिन जब 3 वाला है ना, जैसे ए बी सी को आपने जब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना, आपने स्केलर से निकाल लिए थे, तो यहाँ पे जैसे स्केलर आपने निकाला था, सपोज k1 इंटू दिस वेक्टर प्लस k2 इंटू दिस वेक्टर प्लस k3 इंटू, तो k के क्वेश्चन में लास्ट में उसको ऐसे नहीं लिखा गया, जो वेक्टर आपको गिवन था आपने ये तो निकाल लिए थे, 2/3 4/3 इस तरह से कुछ आया था, तो वो आपने यहाँ लिख के और यहाँ पे वेक्टर लिखना था, यहाँ पे लिख के यहाँ पे वेक्टर लिखना था, यहाँ पे उसको कंफर्म करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अगर 3 इक्वेशंस और 3 अननोन्स और सोल्यूशन आ जाता तो उसको दोबारा पुट करके वो ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें डायरेक्ट आप स्केलर्स की वैल्यू यहाँ पुट करके उसको बता दो कि दिस इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। जब फिर कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो ये जो हमारा जो लीनियर अलजेब्रा है वो लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट, इसी के ऊपर ही काम चलता जाएगा। तो इसको जब थोड़ा सा अच्छे से कर लो, और बाकी बिल्कुल इजी चैप्टर है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।